ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو دین محمد کا طلبگار نہیں ہے، سچ پوچھو تو جنت کا حقدار نہیں ہے. سرکار دو عالم کے سوا حشر میں کوئی اس امت آسی کا مددگار نہیں ہے. یہ ہے خاک ساری کے دو جہاں کے آقا بھی مفلس کی عالم میں بکریاں چڑھاتے ہیں. یوں تو کتنے انبیاء آئے دہر میں، لیکن خود خدا محمد کو عرش پہ بلاتے ہیں. ہم انہیں کے صدقے میں آج دل سے قاسے نعت مصطفیٰ پڑھ کر قوم کو سناتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے، میرے متعلق کو تازہ فرمائے. میں سیدھے پیغام کو شروع کر رہا ہوں. میرا بہت اچھا پیغام، خوبصورت پیغام آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کو دھیان رکھ سنیے. ایک چھوٹا سا پیغام دین کے حوالے سے دے رہا ہوں، اس کے بعد میں سرمودی پہ آ رہا ہوں. دین کے حوالے سے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ دین کیسے پھیلا اور یہ دین کیسے باقی ہے. یہ دین کیسے پھیلا اور یہ دین کیسے باقی ہے. یہ دین جو پھیلا ہے یہ دعوت و تبلیغ سے پھیلا ہے، اور یہ دین جو باقی ہے یہ مدرسے کے ذریعے سے باقی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 180 ملک میں دعوت و تبلیغ کے کام شروع کیے. انگریز آئے، 4000 مدرسے کو بند کر دیے. چوری چھپے جو عالم تھے اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا. اس کڑی محنت سے ہمارا آپ کو دین مذہب ملا ہے اور دین اسلام ملا ہے. آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ گاؤں سماج کی علماء کرام کا عزت کیجیے. آپ علماء کرام کا عزت کیجیے. اگر آپ علماء کرام کی عزت نہیں کریں گے اللہ آپ کو اولاد کے علم سے محروم کر دے گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ آئے ہیں، تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں. ادھر سے پرچہ آیا، اس پرچے میں 3 جملے تھے. وہ 3 جملے کیا لکھے تھے وہ میں آپ کو سننے جا رہا ہوں. لگا لائن سنا رہا ہوں. اگر آپ لوگ سننے کے تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ 3 جملے کیا تھے میں آپ کو سمجھ جا رہا ہوں. پہلا جملہ تھا کہ تم باپ کے نہیں ہو. تیسرا جملہ تھا کہ تم یہاں سنبھل کر کے بولنا. تیسرا جملہ تھا کہ تم پہلا جملہ تھا کہ تم باپ کے نہیں ہو. دوسرا جملہ تھا کہ تم یہاں سنبھل کر کے بولنا. تیسرا جملہ تھا کہ تم باپ کے نہیں ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جملے کا جواب دیا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے بھائی تم مجھے کافر سمجھ رہے تھے، میں کافر نہیں ہوں. لو میں نے تمہاری تسلی کے لیے کلمہ پڑھ دیا، اب تو میں مسلمان ہو گیا. دوسرے جملے کا جواب دیا کہ آج وہ لوگ موجود ہیں، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو میرا ماں باپ کا نکاح ہوا تھا، میں زنا کی اولاد نہیں ہوں. تیسرے جملے کا جواب دیا کہ میں یہاں اللہ رسول میں یہاں چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب کون قسم
शराब के हवाले से पैगाम आ रहा है। आपके सामने पहली हदीस आ रही है, दारू के हवाले से आ रही है, शराब के हवाले से आ रही है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है? हाथ से इंशाल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं? एक मतलब हाथ से इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, मेरे मुतालिक तज़ा फरमाए। दारू के हवाले से, शराब के हवाले से पैगाम को सुना रहा हूँ। पहली हदीस आपके सामने आ रही है। पहली हदीस, शराब का कतरा हलक के नीचे उतरा, उसकी नहुसत से 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं। दूसरी हदीस आपके सामने आ रही है। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आया, कहा या रसूलल्लाह, मैं शौक से दारू पीना नहीं चाहता हूँ, डॉक्टर ने बताया है इलाज के लिए, दवाई के लिए, इसलिए पी रहा हूँ। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना हादा लैसा बिद्दवा, कि दारू बीमारी को बढ़ा सकती है, दवाई नहीं। गिलासों में जो डूबे फिर इन उभले जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बादी अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो गोता है जवानी में, ये दारू का पियाला मौत का करवा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। फसाद का जमाना था, दिल्ली की तारीख आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिए। फसाद का जमाना था, हिंदू पूछता था कि मुसलमान कौन है, उसे कत्ल कर देता था। मुसलमान पूछता था कि हिंदू कौन है, उसे कत्ल कर देता था। मिर्जा गालिब सड़क पर आए, दो फसाद रसूल का पूछा तुम कौन हो? कहा तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान हूँ। कहा ये आधा आधा मसला तो बिस्किट में होता है, इंसान में कैसे होता? कहा कि मैं बतलाता हूँ कैसे होता है। सुअर नहीं खाता, आधा मुसलमान हूँ, दारू पीता हूँ, आधा हिंदू हूँ। मिर्जा गालिब दारू की बोतल लेके मस्जिद चले गए। मुसलमानों ने कहा, मुक्तदियों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मुसलमान होकर के दारू की बोतल लेके मस्जिद में आ गए। तो मिर्जा गालिब ने नशे में कहा, अगर मस्जिद में दारू पीना मना है तो दुनिया में मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर खुदा नहीं है, जहां पर खुदा नहीं है। साकी शराब पीने मस्जिद में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, जहां पर खुदा नहीं। एक किस्सा शायर खड़ा हुआ, उसका नाम है अहमद फराज। उसने अल्लामा इकबाल का हाथ पकड़ लिया तो कहा कि हाँ एक जगह है जहाँ पर खुदा नहीं है। ईसाई के दिल में जाओ, यहूदी के दिल में जाओ, वहाँ पर खुदा नहीं है। आप मस्जिद में पी नहीं सकते, मस्जिद के बाहर पी नहीं सकते, घर में पी नहीं सकते, घर के बाहर पी नहीं सकते। ईसाई के दिल में जाओ, यहूदी के दिल में जाओ, वहाँ पर खुदा नहीं है। मस्जिद तो मस्जिद है, पीने की जगह नहीं। ईसाई के दिल में जा, वहां पर खुदा नहीं। अल्लाह एक किस्सा शायर खड़ा हुआ, उसका नाम है अहमद फराज। उसने अल्लामा इकबाल का हाथ पकड़ लिया, कहा कि आपने ईसाई का दिल चिक कर देखा, वो खुदा नहीं है। कहा कि बात तो सही है, मैंने किसी ईसाई का दिल चिक के नहीं देखा है। कहा फिर आपने कैसे दावा कर दिया? तो अल्लामा अहमद फराज ने कहा कि आपका जवाब सही नहीं है, आपका जवाब गलत है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा तुम ही जवाब तो क्या देते हो? कहा एक जगह है जहाँ दारू पीना नहीं मना नहीं है। इंशाअल्लाह जो नौजवान दारू पीते हैं वो हाथ से इंशाअल्लाह हो जाकर पिएंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं राजा का रोन जाएगा, इंशाल्लाह ठीक ठाक जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो कहाँ एक जगह है जहाँ दारू पीना मना नहीं है। खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, दुनिया में हर जगह। जन्नत में तू जा, वहाँ पीना मना नहीं, वहाँ पीना मना नहीं। एक किताब है, उसका नाम है नफतुल अरब। उस किताब में लिखा है कि हज्जाज में यूसुफ ने ऐलान किया अगर कोई नौजवान दारू पीकर सड़क पर टहलेगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसी दिन 3 नौजवान दारू पीकर सड़क पर टहल रहा है। सिपाहियों ने कहा अल्लाह समद, आज ही ऐलान हुआ, आज ही ये लोग कानून को तोड़ के कानून के खिलाफ चल रहा है। सिपाहियों ने
कहा आज ये लोग कानून के खिलाफ चल रहा है, तो सिपाही पहले जवान को पकड़ ले जाता है, कहा कि मुझे मत पकड़ना, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पे हांडी चलती है, उतरने का नाम नहीं लेता है। दूसरे शख्स को पकड़ ले गया, क्या मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़ों बड़ों की गर्दन जाती है। तीसरा जवान को पकड़ ले गया, कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके मुट्ठी में हवा है। तो सिपाहियों ने कहा सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिसका बेटा मालूम होता है उसे छोड़ दिया। हज्जाज यूसुफ ने कहा कि तीनों को पकड़ के लाओ, ये कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं है, नशे में है, तुम्हें पागल बना रहा हूँ, 102 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, 102 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हज्जाज यूसुफ ने कहा कि तीनों को पकड़ के लाओ, ये कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं है, नशे में है, तुम्हें पागल बना रहा है। जिस नौजवान ने तुमसे कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पे हांडी चलती है, उतरने का नाम नहीं लेता है, ये कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं है, ये बावर्ची का बेटा है। भात उतरता है तो तरकारी को चढ़ाता है, तरकारी उतरता है तो दाल को चढ़ाता है। दूसरा नौजवान जो तुमसे कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके मुट्ठी में हवा है, ये कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं है, ये लुहार का बेटा है। जब हाथी चलाता है तो हवा भी रुक जाती है, जब हाथी चलाता है हवा भी चलती है, जब हाथी को रोकता है तो हवा भी रुक जाती है। तीसरा नौजवान जो तुमसे कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़ों बड़ों की गर्दन जाती है, ये कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं है, ये नाई का बेटा है। अगर बादशाह भी अगर सर बनाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा। 1 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान में अभी हमारे नाजिम साहब बता रहे थे, हिंदू और मुसलमान के बारे में अशार पढ़ रहे थे। हिंदू मुसलमान में फर्क क्या है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। 2 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, इसको ध्यान कर सुनिए, हमारा आपका एक काम आने वाली है। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है उसका रुख किधर होता है, उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। हाँ, क्योंकि हमारा काबा पश्चिम है, हमारा किबला पश्चिम है, इसलिए जब मुसलमान मस्जिद बनाता है उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, जब वो मंदिर बनाते हैं उसका रुख भी पश्चिम की तरफ होता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है उससे अलावा कपड़ा नहीं पहनता है, एक लुंगी होती है, एक चादर होता है, उसको पहन लेता है। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, जब वो तीरथ में जाते हैं तो वो भी लुंगी और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है, जब मक्का मदीना जब तवाफ करता है तो वहां 7 चक्कर मारते हैं। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, जब गैर मुस्लिम के जब शादी होती है तो लुंगी में दुपट्टा बांधकर वहां भी 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की जरूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हम मुसलमान हमारे यहाँ मुसलमान के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका अच्छा नाम रखते हैं, सन को मुड़ते हैं, उसका नाम रखा अकीका, उसका नाम क्या रखा अकीका। जब आप गैर मुस्लिम के जाइएगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा करण संस्कार। करण संस्कार का मतलब है कि जब आप गैर मुस्लिम के जाइएगा, जब उसका बच्चा पैदा होता है, जब बड़ा होता है तो सर का मुड़ा जाता है, नाम अच्छा रखा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो। तुम्हें बाद में बसाना चंद लोग को, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा फुदकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। न किताबों से नमाजों से नजर पैदा, दीन होता है बुजुर्ग की नजर पैदा, नहीं समझते हैं कश्मीर के घर में पहले काले खिचकर हमारे साहब के दफ्तर में खेत रोटी भी गई, बड़ी किताबें छोटी भी गई, नमाज गाँव की फिर की शक्ल में गई। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, हमारा आपको कुछ बात होगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।